हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। मूवमेंट ऑफ ओशियंस वाटर, देयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर। द वाटर ऑफ द ओशियंस आर नेवर स्टिल। देयर ocean actually exhibit of the three major types of movement. There is a wave, tides and currents. There is the most important here. There are first point arrive here. Waves. The waves are oscillatory movement that is a result in the rise and fall of water surface. In fact, the moment of each water particle in a wave is a circular. The moment of the wave is just like the wind's blowing across a wheat field and the causing a wave like a ripple to the roll across to its surface. The beanstalk is returned to the original position after the passes of each wave of the wind, and similarly water also returned to its original position after the transmitted a wave. There is the most important. A wave has two major parts. The raised part is called the crest. Between to the two crests are low area called thaw, and there are vertically distance between the top and the crest is called wave height. The horizontal distance between two crests or two thaw there is called wave length. The time it takes for the two crests to the pass a given point is called wave period, and fast moving is a wave has a short period, while slow or moving wave have a long period. Here is the most important diagram. There are part of the wave. There is the most important. There is height, trough and crest till water level and wavelength. The wavelength is shown on the two side. First the trough and there is the other side. There are part of wave. The size and force of the sea wave depend on the three factor. The velocity of the wind. There is the most important. The length of time winds blow and distance that the wind has a travel across the open sea, and this is called to the fetch. The wave are an important agent of erosion. When to wave are associated with the storm on the volcanic eruptions. They are very violent and cause of damage on the coastal area. They are also a source of energy and effort to the begin made to the hardness and their energy. The next here are tides. The tides along is a coastal all over the world. We observe the sea water is moving both upward and downward at a rates varying from place to place. Such a variation in the sea level occur from here to here and from a day to day. At the time of a rising sea level, the incoming tide toward to the land is spoken of as a flow tide or the flood tides. At the time of falling sea level after a few hours, we speak of the tides water going out of withdrawals is ebb tides. Low tides, above tide is the low tides, and there are flood tides are high tides, and the ebb tide is the low tides. The tides are really there is the largest wave keeping their oceans water restless. Twice a day or regularly at the constant intervals, the tides flow in, and twice a day it is a ebbs way. Twice as a month, flow tides are higher and the ebb tides are lower than the average. Also, twice a month, flow tides are lower and the ebb tides are higher than the average. However, there is regular interval between two high tides or between two low tides is a 12 hours and 25 minutes, and not exactly is a 12 hours. Each day in a 24 hours, there are high tides arrives about 51 minutes later than on the previous day. It is so because each day is a rising and setting of the moons also fall behind by the 51 minutes. It will take a 24 hours or 50 minutes for the rotating to the earth varying to the same meridians and vertically below to the moons every day. That is the most important. The timing of their tides at the place
on the coastal will be clear to you. You are form of the following example. The high tides here 6 a.m. and the low tide is the 12:13 p.m. and the high tide is the 6:25 p.m. And the low tide here are coming to the 12:38 a.m. and high tides come to the 6:51 a.m. next day. There is the most important the tides arrive and low tides and high tide. The factor responsible for the warnings about the such a variation in the regulation and the size of the tides are the location of the sun, the moon and the earth is related to the each other which is related in the straight line. The distance of the sun and the moon from the earth are not a constant, and the next year our globes is not entire covered with the water. The outline and shape of the coastal may be helped or hidden in the tides. There is the most important. The still there are tides follow the each other with the great is a punctualities at the one given coastal. And what are the force that generate the tides? The earth attract and is also attracted by the sun. The moon and by other is a planet's body. It's called their gravitational force. And it's operate between the suns, moons and the earth. It is set their oceans water is a motion producing a tides current. And tides are a proof of such a gravitational pull. The moons and the sun both extend there is a gravitational force on the earth. The ocean, submarine relief and the circulation sun which is a bigger in a marks than to the moon is also at the greater distance from the earth than the moon. Therefore, the gravitational attraction of the moon is a more effective on the earth and the gravitational attraction of the sun. Since there is a water is a liquid and the mobiles it is a bearings in the direction facing the moon easily noticed. Yet the lower tides bus also develops on the other side of the earth and the further from the moons because the moon is the least attraction. Here show the diagram of formation of tide. There is a CF is a centrifugal force and GF is a gravitational force. There is the tides based earth. There is the moons. There is the most important diagram here. The next here is spring and nipple tides. The moon as it is closer to the earth except to the twice of gravitational pull of the sun on the earth. When the sun and the moon are is aligned as on the new moons is a Amasya or the full moons is a Purnima. There is a most important here Amasya and Purnima and both them pull together at the same time in the same direction. And this combined pull up produce a extra large tide. It is called a spring tide. There is a large tide and the extra tide is called to spring tides. In the first quarter is Astami, Shukla and Paksh and the third quarter is the Asmi Krishna Paksh. There is a gravitational force of the two heavens body is at the right angle. At this time, the two pull of the opposing each other and are not attacking in their same direction. In other words, they are the cancel are neutralized to each other as a fact. It's a produce a big tide which is called nipple tides. Show in this figure. Here show the one here are spring tides. There is spring tide is a attraction to each other and other is a tides. A second there is a sun and the moons and the earth here. There is a most important diagram show in this picture. The next here effect of tides. The phenomenon of tide which is so universal has been to the immense is a value to man for a age. Tide acts a link between the port and the open sea. Some of the major ports of the world, such as London port of the river Thames and the Kolkata port are rivers are Hooghly are located on the river away from to sea coastal. The tides currently clear away to the river sediment and the slow down to the growth of the delta. It is increasing the depth of water which help a ship to move safely to the ports. It also act as the source of producing electricity. The tides make the rivers flooded for the oceans, going seas, clear sediments, and ready to the formation of the delta and are the source of producing electricity.
The next here is the currents. The currents is the most important. The ocean currents are horizontal flow of the mass of water in a fairly defined direction over to great distance. They are like a stream of the water flowing through their main body of the ocean is a regular pattern. The average speed of current here between 3.2 kilometer to the 10 kilometer per hour. Ocean currents with a higher speed are called stem and current with a lower speed are called draft. There is the most important. The higher speed is called to the stem current and the lower speed is called to the draft. There is the most important. Ocean currents can be broadly is divided into here the first here those current which is a flow from the equatorial regions toward to the pole have a high surface temperature and are called warm current. And next here those currents which is a flow from polar region toward to the equator have a lower surface temperature and are called cold currents. There is the most important. The origin and the nature of the circulation of the ocean currents depend on the following factor. The factor here is important. The first factor here, difference in a density. The sea water as a density varies from place to place according to its temperature and proportion of salinity. The higher their temperature of water, the lesser will be a density. Hence, there are less dense water of the equator move toward a pole, while there are cold and dense water of the poles move toward their equator. Thus, the cold currents away move from to the poles to equator, while there are warm current moving from equator toward the poles. The currents are also produced by the change in the salinity of the ocean water. If the salinity of the water is more, the density of the water increase and the water sink. Hence, the water with the lower salinities flow on the surface of the high salinities. Water will on the undercurrent of the high salinities and flow toward to the less dense water. The current is the causing by difference in the salinity are found between the Atlantic Ocean, the lower salinity, and the Mediterranean Sea of the higher salinity. There is the most important. The important point here, the height, the temperature of water, lower is the density. And the height, the salinity of water, higher is it is a density. The next here, the earth as a rotation. We have studied in an earlier lesson that the earth as a rotation defect here to it is a right in the northern hemisphere and to it is a left in the southern hemisphere. Similarly, ocean water is also affected by the Coriolis force and flow there fairly low. So all the ocean current flow to the clockwise direction in the northern hemisphere and anti-clockwise direction in the southern hemisphere. There is a earth as rotation. The next here, the planetary wind. There is the most important here, the planetary wind like the trade as a wind is the western rise, drive to the ocean's water in the easterly flow in the front of them. If we are compared to the world map of planetary winds or system with that of the ocean's current, it will be clear that a current flow the main direction of the planetary wind system. In a low latitudes are the region of the trade wind oceans currently change. There is a direction according to the change in the direction of the summer and winter monsoon winds. यहाँ पर जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है महासागरीय जल में गति। देखिए ये जो है चैप्टर महासागर अंत समुद्री उच्चवास तथा महासागरीय जल का परिसंचरण के अंतर्गत है। यानी ये पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महासागरीय जल में गति। इसमें हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं अगर देखा जाए तो महासागरों का जल सदा ही गतिशील रहता है और महासागरीय जल में मुख्यतः 3 प्रकार की गतिशीलता देखने को मिला है। एक तो होता है तरंग और दूसरा होता है ज्वार भट्टा और तीसरा होता है धराएं। ये तीनों जो है मिलके बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है महासागरीय जल में गति का जो है प्रसरण करते हैं। तो सबसे पहले हमारे समक्ष है तरंगे, यानी देखा जाए तो वेव क्या है। देखिए तरंगे जल तल के ऊपर उठने या नीचे गिरने के कारण होने वाली दोलिनी गति होती है। वास्तव में तरंग में जो है प्रत्येक जल कण की गति गोलाकार होती है और तरंगों की तुलना में गेहूं के लहराते हुए खेतों की
की जा सकती है। अगर आपने गेहूं की खेती देखा होगा तो हवा में जैसे लहराते हैं वैसे ये तरंग जो है लहराते रहते हैं। जब किसी खेत में तेज पवन चलती है तो तरंगे जैसे गति उसकी सतह पर दिखाई देती है, लेकिन तरंग के चले जाने के बाद गेहूं की बलियां अपनी मूल स्थिति में लौट आती है। ठीक वैसे ही तरंगे में भी जल की कण जो है तरंग के चले जाने के बाद अपनी मूल स्थिति में लौट आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हवा चलता है तो गेहूं की खेती में जो है एक लहरें से उठती है, लेकिन जैसे वो हवा पास हो जाता है वो फिर से जो है अपनी पुण्य स्थिति में आ जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे तरंग को आप समझ सकते हो। देखा जाए तरंगों के जो है मुख्य दो भाग होते हैं। तरंग के ऊपरी उठे भाग को हम तरंग भुंग कहते हैं। दो तरंग भुंगों के बीच के निचले भाग को जो है तरंग गत कहते हैं, और तरंग भुंग तथा तरंग गत के मध्य के उधर दूरी को तरंग की ऊंचाई कहते हैं। दो तरंग जो है श्रृंखलाओं अथवा दो तरंगतों के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग धैर्य या तरंग की लंबाई भी कहते हैं। किसी भी निश्चित स्थान पर दो लगातार जो श्रृंगों की गुजरने के बीच की अवधि को हम तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, यानी उसके कितने समय के दौरान चली है उसको हम आवर्तकाल कहते हैं। तेज गति वाली तरंगों का आवर्तकाल छोटा होता है, जबकि धीमी गति वाली जो तरंगों का आवर्तकाल बहुत लंबा होता है। देखिए तीव्र जो चलती है उसका आवर्तकाल बहुत छोटा होता है, ठीक है, लेकिन जो है तरंगे बहुत धीमी गति से चलती है उसका समय काल जो है काफ़ी लंबी होती है। यहाँ पर आप जो है डायग्राम से भी समझ सकते हो कि तरंगों की घटक। देखिए यहाँ पर ऊंचाई को दर्शाया गया है, यहाँ द्रोणी को दर्शाया गया है और स्थिर जल को दर्शाया गया है, और तरंग की लंबाई दर्शाया गया है। तो इसके तरंग जो है उठते रहते हैं हवाओं के साथ और फिर जो है एकदम इक्वल हो जाती हैं। तो ये डायग्राम भी बहुत समझाने के लिए काफ़ी पर्याप्त रहेगा। जैसे आप समझ सकते हो कि जो बेशकली लहरें तो उठती है लेकिन समय के साथ ये जो है नीचे रह जाती है। यहाँ पर देखा जाए तरंगों के आकार और बल तीन कारकों पर निर्भर करते हैं, यानी इसके तीन कारक होता है जिस पे ये निर्भर करता है। पवन की गति, ठीक है, पहला तो होता है पवन की गति, दूसरा होता है पवनों के बहने की अवधि कि पवन कितना टाइम तक बह रहा है, खुले समुद्र में पवन की निषेधन बहने की दूरी। तो ये सारे फैक्टर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं तरंग अपरदन का एक मुख्य कारण है भूकंप भी हो सकती है, तूफान भी हो सकती है, और ज्वालामुखी के से उत्पन्न तरंगों के प्रलयकारी भी होती है। तो समुद्री तलीय क्षेत्रों में बहुत विनाश भी करती है। यानी अगर देखा जाए तो ये इसको तीन कारण को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है, भूकंप, तूफान और ज्वालामुखी। कहते हैं समुद्र तटीय क्षेत्र में बहुत विनाश करती है, और ये तरंगे जो है ऊर्जा के स्रोत भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है इन्हीं स्रोतों का जो है साइंटिफिक रीजन से जो है बिजली को उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जा रहा है। इसलिए इस ऊर्जा का उपयोग करने का प्रयत्न भी किया जा रहा है। महासागरीय जल की दोलन गति, जिसमें जल कण गोलाकार गति में चलते हैं, को ही तरंग कहा जाता है। जल कण जो है तरंग भूंग का ऊपर की ओर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं और नीचे के और आते हुए तरंग गत में जो है पहुंच जाते हैं। यह प्रक्रिया श्रृंखला बंद होती ही रहती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ज्वार भट्टा। देखिए ज्वार भट्टा के बारे में आपने सुना ही होगा कि आखिर जो ये पानी की जो लहरें उठते हैं तो हम अमावस्या पूर्णिमा की ही बात क्यों करते हैं? क्या अमावस्या पूर्णिमा में कुछ जुड़ा हुआ बातें होती है? क्या ये ज्वार भट्टा उठते हैं, इसका हमारा क्या फ़ायदा होता है? कहते हैं पुराने समय में अगर आप चले जाओ तो वहाँ पर जो होते थे बंदरगाहों पे जो लोग यहाँ से वहाँ यात्रा करते थे और समुद्र में अपने जहाज़ को उतारते थे, वो पूर्णिमा और अमावस्या की बातें किया करते थे कि वो अमावस्या पूर्णिमा की वो प्रतीक्षा करते थे और वही समय जो था पर्याप्त था। लेकिन आज के समय में अगर आप कहोगे अमावस्या पूर्णिमा के नाम से ही आपको डर लगेगा। तो कहते हैं उस समय आखिर लोग पूर्णिमा और अमावस्या की प्रतीक्षा क्यों करते थे? आखिर पूर्णिमा अमावस्या में ज्वार भट्ट के साथ क्या होता है? तो यही बात का जो है हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिर अमावस्या पूर्णिमा में ज्वार भट्ट का क्या रिलेशन है, अमावस्या पूर्णिमा में क्या होता है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए कि ज्वार भट्टा का क्या क्या उपयोग हो सकता है। कहते हैं समस्त विश्व में जो है समुद्र तल के साथ साथ समुद्री जल विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दर से ऊपर उठता है। समुद्री जल की सतह में यह परिवर्तन घंटों दर घंटों तथा दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। उठते हुए समुद्री जल स्तर के समय धरातल की ओर बढ़ते हुए जल के प्रभाव को ज्वार या ज्वारीय बाढ़ कहते हैं।
यानी आप समझ गए होंगे कि ज्वार और ज्वारीय बाढ़ क्या होता है। यानी उठते हुए समुद्री जलस्तर के समय धरातल की ओर बढ़ते हुए जल को हम ज्वार या ज्वारीय बाढ़ कहते हैं। कुछ घंटों के पश्चात गिरते हुए समुद्री जल स्तर के समय ज्वारीय जल वापस चला जाता है। यानी जैसे खत्म होता है वो वापस चला जाना स्वाभाविक बात है। यह भट्टा कहलाता है। ज्वारीय बाढ़ उच्च ज्वार तथा भट्टा निम्न ज्वार। देखिए ये दो बातें इंपॉर्टेंट है। ज्वारीय बाढ़ जिसको हम उच्च ज्वार कहते हैं और भट्टा को हम क्या कहते हैं, निम्न ज्वार। वास्तव में ज्वार भट्टा सबसे अधिक बड़ी तरंगों जो है महासागरीय जल को गतिशील करती है। नियमित रूप से प्रतिदिन एक निश्चित अंतराल पर 2 बार समुद्री जल ऊपर उठता है और 2 बार नीचे बैठता है। कहते हैं ये जो है ये महीनों में जो है 2 बार उच्च ज्वार तथा ज्वारीय बाढ़ औसत ऊंचाई होता है और भट्टा नीचा होता है। ठीक इसी प्रकार से महीनों में 2 बार ज्वारीय बाढ़ औसत से नीचा होता है और भट्टा नीचा होता चला जाता है। 2 उच्च ज्वारों के बीच अथवा 2 निम्न ज्वारों के बीच निमित्त जो अंतर 12 घंटे या 25 घंटे तक होता है, न कि ठीक 12 घंटे का। दिन का 24 घंटों में उच्च ज्वार पिछले दिन की तुलना में 51 मिनट देर से आता है। यह इसलिए होता है क्योंकि प्रतिदिन चंद्रमा के निकलने और छिपने में 21 मिनट का जो है विलम्ब होता है। देखिए चंद्रमा का जो है काफ़ी इसमें रोल होता है। प्रत्येक दिन जो है घूर्णन करती हुई पृथ्वी जो है उसी देशांतर के ठीक चंद्रमा के नीचे लाने में 24 घंटे 50 मिनट लगते हैं। किसी तट पर ज्वार के आने का समय निश्चित उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है बताया गया है समय काल की। उच्च ज्वार जो है 6 पूर्वाह्न में आती है, निम्न ज्वार जो होता है 12-13 जो है अपराह्न में आती है और उच्च ज्वार जो है 6-25 अपराह्न में आती है। अगर निम्न ज्वार की बात करें तो पूर्वाह्न में आएगा जो 12 और 38 के बीच में होगा और उसका उच्च ज्वार जो होगा ये होगा 6 से 51 पूर्वाह्न में होगा। तो ये बातें जो है इस समय अवधि है जब ये ज्वार भट्ट आते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि ज्वार भट्ट जो होती है एक समय काल के लिए होती है और जो पहले समय के लोग होते थे इन्हीं समय का जो है प्रतीक्षा करते थे। तो चलिए देखते हैं प्रतीक्षा क्यों करते थे। कहते हैं ज्वार के समय आकार में परिवर्तन के लिए कार्य उत्तरदायक था। कहते हैं सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की एक दूसरे से संबंध में स्थिति शायद कभी भी एक सरल रेखा में होती हो। पृथ्वी से सूर्य तथा चंद्रमा की दूरी स्थिर नहीं होती है। हमारा ग्लोबल पूरी तरह से जल से ढका हुआ नहीं है। तट की आकृति ज्वार के आने में मदद या बाधा भी बन सकती है। तो इसी कारणों से जो है यह है आगे इसके जो है सबके बावजूद किसी भी तट पर ज्वार एक दूसरे से बाद बड़ी ही नियमितता के साथ उत्पन्न होती है। वो कौन सी शक्ति है जो ज्वार भट्ट उत्पन्न करती है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और इसको मैंने स्टार्टिंग में पूछा था कि वो कौन सी शक्ति है ज्वार भट्ट को उत्पन्न करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। पृथ्वी का आकर्षण करती हुई सूर्य और चंद्रमा उन ग्रहों के समुद्र को प्रभावित करती है। देखिए गुरुत्वाकर्षण जो कि पृथ्वी, चांद और पृथ्वी जो है सूर्य को जो है काफ़ी प्रभावित करती है। यानी पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा को जो है गुरुत्वाकर्षण बल काफ़ी प्रभावित करती है। यह शक्ति जो है गुरुत्वाकर्षण ही बल है, यह सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच कार्य करती है और यह महासागरीय जल की गतिशीलता करके उसमें ज्वार धाराएं उत्पन्न कर देती है। यानी ज्वार भट्ट आने का सबसे बड़ा कारण जो है सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। ज्वार भट्टा इस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। चंद्रमा और सूर्य दोनों अपने गुरुत्वाकर्षण बल से पृथ्वी को प्रभावित करते हैं। यानी चंद्रमा, सूर्य दोनों ही अपने गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी को काफ़ी प्रभावित करते हैं। सूर्य चंद्रमा से आकार में बड़ा होता हुए भी चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी को अधिक दूर है। इस कारण चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सूर्य की तुलना में पृथ्वी पर अधिक प्रभावित करती है, यानी काफ़ी प्रभावशाली होती है। जब तरल दोनों के कारण जो है चल्यमान है, इसलिए पृथ्वी की पानी वाला भाग जब चंद्रमा के सामने पड़ता है तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण इसमें ज्वार भट्ट उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही एक निम्न ज्वारीय उभार जो है पृथ्वी के दूसरी ओर चंद्रमा से दूर होता है। यह उभार काफ़ी नीचा होता है क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा का आकर्षण सबसे कम होता है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो, जैसा कि डायग्राम आप देख सकते हो जहाँ पर ज्वार भट्ट का निर्माण दर्शाया गया है। GF को जो है गुरुत्वाकर्षण बल लिया गया है और CF को अपकेंद्रित बल लिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे चंद्रमा के समक्ष जो भी गुरुत्वाकर्षण लगती है तो वैसे ही ज्वार भट्ट आने का संकेत मिल जाता है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने ये भी बताया था कि ये अमावस्या पूर्णिमा में क्या खासियत है। चलिए देखते हैं अमावस्या और पूर्णिमा का क्या विशेषता है। इसमें जो है वित्तीय और लघु ज्वार, देखिए सबसे पहले हम
वित्त और लघु ज्वार की बात करते हैं, कहते हैं चंद्रमा पृथ्वी को अधिक पास है, इसलिए यह सूर्य की अपेक्षा पृथ्वी पर दुगना गुरुत्वाकर्षण बल डालती है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक पास है, इसलिए दुगना जो है गुरुत्वाकर्षण बल डालता ही होगा। इसमें जो है अमावस्या पूर्णिमा के दिन जब सूर्य तथा चंद्रमा का एक सीधा रेखा में होते हैं, तो दोनों ही एक ही समय में अथवा एक ही दिशा में अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर डालते हैं, और इसकी जो है संयुक्त शक्ति जल का उतार चढ़ाव साधारण उतार चढ़ाव की अपेक्षा अधिक होती है। इसे हम वृत्त ज्वार भट्ट कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जब अमावस्या या पूर्णिमा के दिन जो होते हैं, कहते हैं इनकी दिशा एक सामान्य होते हैं, सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर काफ़ी जो है सीधे पड़ते हैं, जिसके वजह से गुरुत्वाकर्षण के कारण जो है यहाँ पर बहुत बड़ा ज्वार भट्ट जो है उत्पन्न होती है। इसी कारण से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समकोण हो जाती है, और इस स्थिति में दोनों का खिंचाव एक ही दिशा में न होकर एक दूसरे के विरुद्ध होती है। दूसरे शब्दों में सूर्य तथा चंद्रमा एक दूसरे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कम कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप इन दिनों में जो है जल का जो है उतार चढ़ाव जो है साधारण उतार चढ़ाव की अपेक्षा बहुत कम होती है, और इसे जो है ज्वार भट्ट कहते हैं, यानी लघु ज्वार भट्ट कहते हैं। यानी याद रखना दोस्तों, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन सूर्य चंद्रमा की जो है समकोण हो जाती है, और समकोण के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो होती है कमजोर हो जाती है, जिसके कारण लघु ज्वार भट्ट आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो है वित्तीय ज्वार भट्ट जो है पूर्णिमा क्यों आता है, और लघु जो है छोटा है, और शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अष्टमी के दिन क्यों आता है। तो आपको क्लैरिटी आ गई। आगे देखते हैं क्या है। देखिए, इसी बात को अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जो है वित्त और लघु ज्वार भट्ट दर्शाया गया है। आप देख सकते हो कि जो यहाँ पृथ्वी जो है, सन जो है, कैसे जो है लघु और जो है वृत्त जो है ज्वार भट्ट के उत्तरदायक कारण बन रहे हैं। समकोण होना, पूर्णिमा, अमावस्या, अब देख सकते हो कि इसी कारणों से जो है वृत्त और लघु ज्वार भट्ट बनते हैं। तो ये सारे जो है गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होता है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा बात यहाँ पर है, ज्वार भट्ट के प्रभाव क्या होता है। कहते हैं ज्वार भट्ट उत्पन्न होने एक विश्वव्यापी घटना है। ज्वार भट्ट मनुष्य के लिए ऐतिहासिक काल से बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। ज्वार भट्टा जो है पतन के समुद्र से जोड़ते हैं। विश्व में कुछ प्रमुख पतन जैसे टॉमस नदी पर जो है लंदन, हुगली नदी पर कोलकाता समुद्री तट से दूर स्थित है। ज्वारीय जल इन नदियों से आकर इनमें जो निक्षेपित तलछट के साफ कर देती है, और डेल्टा के विकास को धीमी कर देती है, और यह नदियों के ऊपर मार्ग को भी गहरा कर देती है, जिससे समुद्री जहाज सुरक्षित पतन तक पहुंच जाते हैं। कुछ स्थानों में ज्वारीय भट्ट का प्रयोग विद्युत उत्पन्न करने के स्रोत में भी उपयोग किया जाने लगा है। तो दोस्तों, इसका सबसे बड़ी बात जो था, पुराने समय में ज्वार भट्ट का उपयोग जो होते थे, बड़े बड़े जो समुद्र में जहाज उतारते थे, वो पूर्णिमा अमावस्या का ही दिन का वेट करते थे, क्योंकि ज्वार भट्ट से क्या होता था, उनकी नाव जो होती थी, उनकी जो शिप होती थी, जहाज होती थी, बहुत आसानी से दूसरे पार्ट में पहुंच जाती थी। आपको शायद पता होगा कि वास्को डी गामा जो भारत आना चाहता था, लेकिन वो भारत नहीं आना चाहता था, वो वेस्ट इंडीज की खोज में निकला था, लेकिन उसको ज्वार भट्ट ने उसको लाके जो है भारत में पटक दिया, और उसने जो है न्यू भारत का खोज कर लिया। तो ये पहले समुद्र पे डिपेंड होता था, कि उसके ज्वार भट्ट पे डिपेंड करता था कि व्यक्ति कहाँ पर जाएगा और कहाँ पर जो है उसको लेके पटकेगा। तो ये बहुत बड़ी बात था। उस समय ज्वार भट्ट का लोग जो थे इन्हीं चीज़ों में उपयोग करते थे, कि ज्वार भट्ट आता था तो उनकी जो समुद्री जहाज होती थी, बहुत आसानी से जो थे पानी में बहुत तेजी से जो है दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता था। तो कहते हैं, देखिए पहले के लोग भी कितने समझदार होते थे, और ये हमेशा जो है पूर्णिमा और अमावस्या का दिन का ही वेट करते थे, क्योंकि इसी दिन आपने पढ़ा भी और जाना भी कि इस दिन जो है उच्च ज्वार भट्ट आता है। ठीक है, और जो शुक्ल के टाइम है, यानी कहते हैं उस समय जो होता है समकोण होने के कारण जो है ज्वार भट्ट नीचे होता है, तो इस दिन का प्रतीक्षा कोई भी नहीं करता है। तो इसलिए जो दोस्तों पहले के समय में पूर्णिमा और अमावस्या के जो यात्री लोग होते थे, जो समुद्र में यात्रा करते थे, वो हमेशा ही इसका प्रतीक्षा किया करते थे। देखिए, हमारा अगला टॉपिक जो है धाराएं हैं। कहते हैं महासागरीय धारा एक जो है सुस्पष्ट और सुनिश्चित दिशा में काफ़ी लंबी दूरी तक क्षैतिज रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि को कहते हैं। यानी जो है लंबी दूरी तक क्षैतिज रूप से बहने वाली महासागरीय जल की एक राशि को कहते हैं। यह नियमित रूप से समुद्र में बहती रहती है। धारा की औसत गति जो होती है 3.2 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है।
अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को जो है स्ट्रीम कहते हैं तथा कम गति वाले धाराओं को जो है ड्रिफ्ट कहते हैं। तो ये कई मानने में कई बार इंपॉर्टेंट रहता है कि स्ट्रीम किसे कहते हैं और ड्रिफ्ट किसे कहते हैं, तो ये धाराओं के अंतर्गत आता है। तो आप समझ गए होंगे। तो अधिक गति वाली महासागरीय धाराओं को हम स्ट्रीम कहते हैं और कम गति वाले धाराओं को हम ड्रिफ्ट कहते हैं। देखा जाए तो महासागरीय जल धाराओं को मोटे तौर पर दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कहते हैं पहला तो ये होता है कि वो जल धाराएं जो विषुववर्तीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहती है तथा जिनका जो है सतही तापमान अधिक होता है, गर्म जल धाराएं कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे कि वह जल धाराएं जो विषुववर्तीय क्षेत्रों से ध्रुव की ओर बहती है। विषुववर्तीय क्षेत्रों से कहाँ बहती है? ध्रुव की ओर। तो जिसका सतह तापमान अधिक होता है, गर्म जल धाराएं कहलाती है। यह जल धाराएं जो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुववर्तीय क्षेत्र की ओर बहती है तथा जिनका जो सतही तापमान कम होती है, ठंडी जल धाराएं कहलाती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा उसके परिसरण की प्रक्रिया कुछ कारकों पर निर्भर करती है। देखते हैं वो कारक कौन कौन सी है। पहला कारक है घनत्व में अंतर। देखिए समुद्री जल का घनत्व हर स्थान पर अलग अलग होता है। समुद्री जल का यह घनत्व उसके तापमान और लवणता के औसतन पर निर्भर करता है। जब जल का तापमान अधिक होता है तो उसका घनत्व कम होता जाता है। यानी देखिए जब जल का तापमान अधिक होता है तो घनत्व जो होती है कम होती है। इसलिए विषुववर्तीय क्षेत्र का कम घनत्व वाला जल जो है ध्रुव की ओर बहता है और ध्रुवीय प्रदेशों का अधिक घनत्व वाला ठंडा जल विषुववर्तीय क्षेत्र की ओर बहता है। इस प्रकार से ठंडी जलधाराएं हमेशा ध्रुवीय क्षेत्र से विषुववर्तीय क्षेत्र की ओर तथा गर्म जलधाराएं विषुववर्तीय क्षेत्र से ध्रुव प्रदेश की ओर बहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है। कहते हैं महासागरीय जल की जो है लवणता में अंतर से भी धाराएं उत्पन्न होती है। देखिए लवणता में अगर अंतर होगा तो जल धाराएं उत्पन्न होगी, स्वाभाविक बात है। यदि जल में लवणता अधिक है तो उस जल का घनत्व बढ़ जाता है, यानी लवणता अधिक होगी तो घनत्व भी अधिक होगा तथा जल नीचे बैठ जाता है। इसलिए कम लवणता वाला जल अधिक लवणता वाले जल के ऊपर बहती रहती है, जबकि उसकी नीचे अधिक लवणता वाला जल कम घनत्व वाले जल की ओर बहता है। लवणता में अंतर से बनने वाली जलधाराएं कम लवणता वाले अंटार्कटिका महासागर तथा अधिक लवणता वाले जो है मध्य सागर के बीच पाई जाती है, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो यहाँ पर यह भी है कि जल का तापमान जितना अधिक होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है। जल में जितनी अधिक लवणता होगी उसका घनत्व भी उतनी ही अधिक होगी। तो समझ गए होंगे, 2 पॉइंटों से साफ क्लियर हो गया होगा कि जल का तापमान जितना अधिक होगा उसका घनत्व उतना ही कम होगा। जल में जितनी अधिक लवणता होगी उसकी घनत्व उतनी ही अधिक होगी। उसके पश्चात हमारे समक्ष है पृथ्वी घूर्णन गति। देखिए पृथ्वी घूर्णन गति से आप क्या समझते हो? हम पहले ये जो है पाठ में पढ़ चुके हैं कि जो है पृथ्वी घूर्णन गति उस जो है उत्तरी जो है गोलों में हवा को दाईं ओर, दक्षिण गोलों में हवा को बाईं ओर मोड़ देती है। और इसी प्रकार महासागरीय जल भी कोरियोलिस बल को प्रभावित करता है, यानी कोरियोलिस बल को काफ़ी प्रभावित करता है और ये धाराएं फेरलेस के नियम का अनुसरण भी करता है। अंततः उत्तरी गोलों में सभी महासागरीय धाराएं दक्षिणी वर्त की दिशा तथा घड़ी की सुइयों को घूमने की दिशा में बहती है, यानी जो है क्लॉकवाइज घूमती रहती है। और दक्षिणी गोलों में ये धाराएं वामवर्त दिशा या घड़ी की सुई के घूमने की उल्टी दिशा में बहती है, यानी एंटी क्लॉक दिशा में ये जो है घूर्णन करती है। उसके पश्चात जो है हमारा भूमंडलीय पवनें। देखिए भूमंडलीय पवन क्या होती है? भूमंडलीय पवनें जैसे कि व्यापारी पवनें एवं पछुआ पवनें के नाम से भी जाना जाता है, महासागरीय जल को लगातार प्रभावित करती रहती है। अगर हम भूमंडलीय पवनों की तुलना महासागरीय जलधाराओं से करें तो यह स्पष्ट हो जाएगी कि जलधाराएं भूमंडलीय पवनों की जो है मुख्य दिशा का अनुसरण करती है। कहते हैं निम्न अक्षांशों वाले क्षेत्रों में अर्थात व्यापारी पवनों के क्षेत्रों में जलधाराओं के प्रभाव की दिशा मानसूनी पवनों की दिशा में परिवर्तन के साथ हमेशा बदलती रहती है।